What should be the biggest learning for everyone in the film business from 2020? First and foremost, content. Two, ticket prices that आम जनता जनरली pays. आज की तारीख में जो फिल्में बन रही है वो फिल्में नहीं बन रही है, प्रपोजल्स बन रहे हैं. दर्शक फिल्में देखना चाहते हैं बशर्ते आप उन्हें वो कंटेंट दीजिए. So shouldn't star also take the responsibility and look at the larger picture? अगर फिल्में नहीं चलेंगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि जब पिक्चर चलती तो एक्टर सबसे पहले बोलते हैं हमने हिट दी है, बट जब फ्लॉप होती तो वो दोष बाकी लोगों को दिया जाता है. Do you see the importance of Khans diminishing? I read a lot of articles. Section of the social media is writing कि खान्स का दौर खत्म हो गया, अक्षय कुमार का दौर खत्म हो गया, अजय देवगन का दौर खत्म हो गया, ऋतिक रोशन का दौर खत्म हो गया. ये जो 90s के सुपरस्टार्स, इनका क्रेज हमेशा रहेगा. Do you think trolling affects business? ये एक इविल है जो रहेगा. Yeah. इससे आप इसको छुटकारा नहीं है. और खासकर ये एक्टर्स के लिए रहेगा. अधिकतम जो लोग हैं इनमें से मैं देखता हूँ कि जो बिना वजह ट्रोलिंग करते हैं. Film business continues to remain volatile. While there can be no definitive answer on how a film will do, we will try and analyze this with someone who knows the business at the back of his hand, film trade expert Taran Adarsh. Thank you so much, Rohit. Thank you. Taran, so good to see you, and at a time when the industry is going for some kind of a change, I think. Absolutely. Taran, if I take you back first, talking about 2022, what should be the biggest learning for everyone in the film business from 2022? Well, various things if you ask me. First and foremost, content. That was lacking in most movies. Two, economics. Economics from the producer's side. Economics from the exhibitor's side. That is the ticket prices that the aam janta generally pays for to acquire the tickets. Now these two factors, of course, the content as well as the affordable ticket rates and economics of the film I think, were responsible for a majority of films flopping at the box office. Also, 2022 was a year where a lot of films came post-lockdown, post-pandemic, which were planned before, before COVID happened or whatever. And the content was looking stale. In those 2 years, a lot of people, including you and me, have watched a lot of international stuff, a lot of non-Hindi stuff on OTT, and our taste changed over a period of time. That was one of the reasons, one of the main important reasons. And during that period, a lot of people saw a lot of South Indian movies. Yeah. I'm talking in specific about Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, because these films and the actors became household names in that period. Whether it is Ala Vaikantapuramalu in Telugu with Allu Arjun, or it could be Vikram Vedha in Tamil, it could be Jersey again in Telugu. It could be many films. There are many films that I can really name at this moment. But the thing is कि आप अगर दर्शक को कुछ नया नहीं देंगे आज की तारीख में, that was the learning for 2022. Takeaway, the biggest takeaway was अगर आप दर्शकों को कुछ नया नहीं देंगे within the commercial format, people are very ruthless. They're bound to reject the movie. और ये पहले दिन पर ही देखा जा रहा है कि कई एक्टर्स की फिल्में जो शायद 10 करोड़ 15 करोड़ की ओपनिंग लेती थी प्री पैंडेमिक, अब 3-4 करोड़ या 2 करोड़ की ओपनिंग ले रही है लॉकडाउन खत्म होने के बाद. और ये एक जो फेज था बहुत भारी पड़ा फिल्म इंडस्ट्री के लिए, खासकर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री. In the meanwhile, the South people came in. Yes. There was, of course, Pushpa to begin with in December 21. Then there was KGF 2, RRR, and Kantara now in the recent past. And these 4 films created magic at the box office. And people realized the difference. Something was really lacking in the Hindi film industry. That was, I think, one of the reasons. The second part, as I said, was the affordable ticket price and the controlling of the budgets. Right. I think 60 to 70% जो हमारा फिल्म का बजट होता है वो एक्टर्स की फीस में चला जाता है. कंटेंट पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता. आज की तारीख में जो फिल्में बन रही है वो फिल्में नहीं बन रही है, प्रपोजल्स बन रहे हैं कि इस एक्टर को ले लेते हैं, इतने में
सैटेलाइट बिकेगा, इतने में OTT बिकेगा, इतने में म्यूजिक राइट बिकेंगे, इतने में ओवरसीज के पैसे आ जाएंगे, इतने इंडिया में आ जाएंगे, अगर स्टूडियो की बैकिंग रही तो और आ जाएगा. एंड दैट इज रूइनिंग द एंटायर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस्ट्री, or should I say has ruined. But I guess things should improve in 23. Yes. Same thing what you said is what Mr. Subhash Ghai told me, that projects बन रहे हैं, फिल्में नहीं बन रही है. बिल्कुल. Right. और इनफैक्ट ये काफ़ी टाइम से हो रहा था, बट इसके रेपरकशंस जो हुए हैं वो 22 में हुए और बहुत ही ज़्यादा हुए हैं. अगर आप देखेंगे तो बड़ी से बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई वो अलग बात होती है, ओपनिंग नहीं ली फिल्म बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों ने, चाहे वो शमशेरा हो, चाहे वो रणबीर कपूर की, चाहे वो ऋतिक रोशन की विक्रम वेदा हो. सर्कस यस, 2022 की आखिरी फिल्म विद रोहित शेट्टी, इससे बड़ा प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कमाल का है. और जब ऐसी फिल्में फ्लॉप होती है तो इंडस्ट्री की नींव, जो फाउंडेशन है, वो हिल जाती है. और यही एक आई थिंक रीज़न था कि जब साल 2022 को हम इसलिए याद करते हैं, वी रिमेंबर 22 फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस, कि फिल्में फ्लॉप हुई, कई एक्टर्स ने शॉक दिया, कई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और नामी प्रोड्यूसर्स, नामचीन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स ने मात खाई बॉक्स ऑफिस पे. तो दैट इज अ फेज दैट इज गोइंग टू बी, I think we'll be correcting that in 23 and of course 24. Right. ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जा रहे हैं. अवतार सर्कस के थोड़ा पहले आई, and they went in large numbers. Yes. But the minute circus came, they just stayed away from the cinema. How is this audience deciding? They have become smarter, or has our quality really gone down? देखिए, पहला इंप्रेशन जो होता है वो ट्रेलर का होता है. The first impression जो आप क्रिएट करते हैं दर्शकों के सामने is your trailer. और जब आपका ट्रेलर रिजेक्ट हो जाता है और क्रिटिसाइज होता है, ट्रोल होता है, आपके एक्टर्स की लुक ट्रोल होती है, जो भी होता है, तो कहीं ना कहीं वो जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत नेगेटिव हो जाते हैं. आपका पहला इंप्रेशन बहुत स्ट्रांग होता है. अगर आपको याद हो, लेट मी गो बैक इन टाइम, इन 1970s और 80s में, उस वक्त सिर्फ थिएटर्स में ट्रेलर्स चला करते थे. और मुझे अभी भी याद है कि जब मैंने उस जमाने में अमर अकबर एंथनी का ट्रेलर देखा था, डॉन का देखा था, कसमे वादे का देखा था, and I could see the reaction in the theaters. People were clapping. उस वक्त आर्टिस्ट नहीं आते थे प्रमोट करने के लिए, उनका जो ट्रेलर था वो कन्वे करता था कि हमारी फिल्म क्या है. अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो कई बार हमारे जो ट्रेलर्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं जैसे ही वो सोशल मीडिया पे लॉन्च होते हैं. क्यों? क्योंकि दर्शकों की उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी है. The expectations are humongous. And at the same time, अगर आपका फिल्म, आपकी जो बज़ है, जो बाद में आप सब्सिक्वेंट आप जो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सॉन्ग्स के जरिए या टीजर्स के जरिए या व्हाटएवर, अगर वो इंप्रेशन नहीं छोड़ता है तो देन आई गेस इट इज़ वेरी वेल नोन फैक्ट इन द इंडस्ट्री कि आपकी फिल्म को ओपनिंग नहीं लगेगी. और यही अनफॉर्चुनेटली हुआ सर्कस के साथ. दो आई फील द फिल्म वाज आल्सो वेरी बैड. इट वाज टेरिबल. इट वो बिल्कुल नहीं लग रही थी कि रोहित शेट्टी की फिल्म है, क्योंकि रोहित शेट्टी ने एंटरटेनर्स बनाई है, रोहित शेट्टी ने ऐसी लार्जर देन लाइफ फिल्में बनाई हैं. बेशक उसमें आप खामियां निकालेंगे, उसको आप क्रिटिसाइज करेंगे, बट जो दर्शक है, जो आम आदमी है, जो फिल्म देखना चाहता है अपनी मेहनत की कमाई से, उसे वो पसंद आती है. और यही मैटर करता है. अनफॉर्चुनेटली एक और रीज़न ये भी है 2022 का, कि हमने जो फिल्में बनाई थी वो कई ऐसी फिल्में बनाई थी जो आज की तारीख में OTT पे देखी जाती है. प्रोड्यूसर्स का दोष नहीं है, ये वक्त ऐसा आया कि पूरी, नॉट जस्ट इंडिया बट पूरी वर्ल्ड रुक गई थी. वो जो फिल्में जो बन गई है या अंडर प्रोडक्शन है, जिसमें से 30 या 40% तैयार हो चुकी है, उनका होगा क्या फिर? वो कंप्लीट करके रिलीज करने लगे और तब लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो हम OTT पे देख सकते थे. और दैट्स द रीजन व्हाई अ लॉट ऑफ फिल्म्स, इंक्लूडिंग, मैं यहाँ पर एक एक्टर को सिंगल आउट करना चाहूँगा, आयुष्मान खुराना. चंडीगढ़ करे आशिकी, अनेक, या जो भी उनकी फिल्में आई, इंक्लूडिंग द रीसेंट पास्ट में, इंक्लूडिंग एक्शन हीरो, लोग सोचते थे कि ये तो हमने ये OTT पे देखने लायक है. वो जो एक वर्ग था दर्शकों का, एक पर्टिकुलर सेक्शन था, वो अब OTT पे शिफ्ट हो गया है. लार्जर देन लाइफ इवेंट फिल्म, आपने अभी अवतार का जिक्र किया, अवतार के अलावा ऐसी RRR, KGF 2,
KGF 2 की कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, तो प्रोड्यूसर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि मैं आपके लिए रात को 12 बजे के बाद, क्योंकि उनका मुहूर्त था, मैं स्क्रीनिंग रख दूंगा 12:01 पे। तो मैंने कहा नहीं, आप मेरे लिए 12 बजे स्क्रीनिंग, मैं इतना लेट देखना भी नहीं चाहता था। मैंने कहा मैं ऑडियंस के साथ 6 बजे देख लूंगा। मैं 5:30 बजे, पौने 6 बजे एयर थिएटर पहुंचा एंड आई वाज शॉक्ड टू सी इट वाज पैक्ड। यानी दर्शक फिल्में देखना चाहते हैं, बशर्ते आप उन्हें वो कंटेंट दीजिए, आप उन्हें वो उस तरह का एंटरटेनमेंट दीजिए जो हमारी अधिकतम फिल्मों में मिसिंग है। हमारी जो फिल्में बनती है वो बैंड्रा टू वर्सोवा ऑडियंस को टारगेट की जाती है, पर जो पैन इंडिया ऑडियंस बैठे हैं, जो छत्तीसगढ़ में बैठे हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, बंगाल में बैठे हैं, गुजरात में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं या साउथ में बैठे हैं, वो कौन सी फिल्में देखेंगे? उनको मेट्रोसेंट्रिक फिल्में या ओवरसीज फ्रेंडली फिल्में देखना नहीं चाहिए, उन्हें पसंद है उनको। दैट इज द रीजन व्हाई हमारी जो फिल्में फ्लॉप हो रही है, उनका मुख्य कारण ये भी है। राइट। सिंस यू मेंशन्ड आयुष्मान खुराना, वो अच्छी स्क्रिप्ट्स चूज कर रहे हैं, लोगों को उन पे भरोसा है कि आयुष्मान की फिल्म है, मतलब अच्छी होगी, उन्होंने बेस बना दिया है। बट अगर वो थिएटर नहीं जा रहे, देन व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस पीपल हु विल साइन हिम एंड वर्क विद हिम? वेल, आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ फिल्म। अब जैसे उनकी एक और फिल्म आ रही है, ड्रीम गर्ल 2। मुझे उम्मीद है कि वो फिल्म बहुत अच्छी शुरुआत लेगी टिकट की। तो इट्स नॉट दैट आई एम राइटिंग ऑफ एन एक्टर, आई एम राइटिंग ऑफ a few genres जो शायद आज की तारीख में लोग OTT पे भी देख लेते हैं, राइट। और कई बार लोग उन्हें ज्यादा वहां पसंद करते हैं बजाय इसके कि हम वो सिनेमा घर में देखें। सिमिलरली अगर अक्षय की बात करें, उन्होंने काफी सारी फ्लॉप दी है बैक टू बैक, बट ही कंटिन्यूज टू चार्ज ओवर 100 crore फ्रॉम व्हाट इफ वी रीड करेक्टली। हाउ डज दिस वर्क? विल दिस चेंज एंड शुड दिस चेंज? या बदलना चाहिए? वेल, आई थिंक देयर आर two points to look at it. Well, I would say that one, the producers are willing to pay him that amount. Right. तो उनका दोष नहीं है, उन्होंने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा कि आपको मुझे 100 करोड़ देना, या जो भी उनकी प्राइस है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। Sure. बट ये उन्होंने नहीं कहा है कि मुझे आप इतना ही देंगे। वो कहते हैं कि ये मेरी प्राइस है, मैं 40 डेज 45 डेज जो भी है मैं फिल्म अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। दैट इज फाइन। बट आज वक्त बदल चुका है। वो इकोनॉमिक्स का जो भार है, जो उस वक्त शायद अफोर्ड कर सकते थे और जो फिजिबल भी लगता था फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, आज वो फिजिबल नहीं लगता। आज वो आपको प्राइस कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपकी रेम्यूनरेशन, आपकी फीस या जो भी आप राइट्स ले रहे हैं बाद में, वो आपको उसमें थोड़ी कटौती करनी पड़ेगी। यू हैव टू रिड्यूस इट। अदरवाइज अगर फिल्में नहीं बनेंगी, अगर फिल्में जिस तरह से हशर हुआ है 2022 में, मैं कहूँगा कि 22 हैज बीन द वर्स्ट ईयर फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। 80s में भी ऐसा साल मैंने नहीं देखा है, या 90s में भी नहीं देखा है जो इतना बुरा वक्त, जबकि हम उस वक्त कहते थे पायरेसी हो गई, आज भी पायरेसी है, बट उस वक्त भी इतना बुरा वक्त हमने कभी नहीं देखा था जितना कि आज देखा है जी। 2022 में देखा है कि फिल्में, जैसा कि मैंने कहा, फिल्में नहीं चल रही, वो एक अलग इशू है, बट लोग देखने नहीं आ रहे हैं। मॉर्निंग शोज कैंसिल हो रहे हैं, आफ्टरनून शोज कैंसिल हो रहे हैं, 5 और 6% ऑक्यूपेंसी है। तो इससे अगेन इट ब्रिंग्स बैक टू द सेम थिंग कि आप जो चार्ज कर रहे हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं करता। तो शुड स्टार आल्सो टेक द रिस्पांसिबिलिटी एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर? अगर फिल्में नहीं चलेंगी तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि जब पिक्चर चलती तो एक्टर सबसे पहले बोलते हैं हमने हिट दी है, बट जब फ्लॉप होती तो वो दोष बाकी लोगों को दिया जाता है, राइट। डायरेक्टर को दिया जाता है, प्रोड्यूसर को दिया जाता है, रिलीज स्ट्रैटेजी को दिया जाता है, मौसम को दिया जाता है, एग्जामिनेशन को दिया जाता है, IPL को दिया जाता है, कोविड वेव को दिया जाता है। पर कभी लोग अपने आप पर ये इल्ज़ाम नहीं लगाते कि हमारी वजह से फ्लॉप हुई है। बट जो एक फ्लॉप है उसका योगदान या जो भी कहूँ सबका होता है इसमें कि उन्होंने फ्लॉप दी है। सबने एक टीम वर्क होता है ये। You cannot just single out the director or the producer and say कि इन्होंने flops दिए। Same बात करें रणवीर सिंह, last year very bankable actor, then came 83 and Jayesh Bhai Jodhar and Circus. Yes. Where does that leave him at this point in time? Well, you are known by your last Friday in the film industry. Right. आपको आपके पिछले शुक्रवार से पहचाना जाता है। और रणवीर के 3 शुक्रवार, the 3 Fridays, right, have not been too good. Right. 83 नहीं चली। And then there was, of course, Jayesh Bhai Jodhar, which was rejected completely. Again, a non-opener. Right. And the third film, Circus, again, जिसकी शुरुआत must have sent shockwaves. Right. Because Ranveer Singh and Rohit Shetty ये combination तीसरी बार साथ में आ रहा था। पहली बार, of course, Simba में आया था, which was a blockbuster, I would say.
and took a fabulous start at the box office. Then, sorry, Ranveer appeared in Suryavanshi. Suryavanshi, and then of course now Circus. Right. And talking of Rohit Shetty, he's not had that average or a flop film for almost 13, 14 years. Yeah. He's only had it. So that was a shocker. Was a complete shocker. But I'm sure Ranveer will bounce back. Rohit Shetty will return with a vengeance. Okay. With Singham again. I'm very confident. Wow. देखिए, one hit and one flop. Yeah, in this case, 3 flops for Ranveer Singh. Yes, आपको शायद कहीं ना कहीं वो दुख पहुंचा है in terms of emotions कि आपके emotions जुड़े थे और you know you are feeling low at that moment. But one Friday changes everything. Yeah, that's true. So I'm sure अभी उनकी आने वाली फिल्म जो होगी करण जौहर के साथ, Yes. it should be interesting. Right. I was going to ask you about that particular film when I come to 2023. But 2022 में do you think male stars काफी wrong गए? None of them made an impact. I can name from Amir Khan to Hrithik Roshan, Ranveer Singh, Kartik Aaryan did Freddy, Siddharth Malhotra did Thank God. You know, there were male stars, if you see. Did they choose wrong or were these just bad films? Well, I think a lot of them were bad films. Yeah. I wouldn't call Vikram Vedha a bad film. Right. I wouldn't call Jersey a bad film. Okay. But yes, a lot of bad films tanked at the box office. Right. For reasons because it was very obvious when you watch the film कि you realize, I mean, I was watching Shamshera, and when you start looking at everything except the screen, that means the film is not holding your attention. Yeah. And that's when I realized that, you know, something was wrong with the film. And it happens with a lot of films. Right. Like Circus, I was very restless. And also, there were moments, I mean, there were films that really were completely below average products in terms of making, in terms of storytelling, in terms of content. I think उनका flop होना जायज़ भी. Right. But कई फिल्में जो बहुत अच्छी होती, जो पसंद भी की जाती in preview circles, genuinely, जैसे मुझे विक्रम वेदा बहुत अच्छी लगी थी. Maybe because I had seen the original and I had loved it. And I saw the Hindi version, I liked it. But when I spoke to a lot of exhibitors on the day of release, जब थिएटर वालों से मेरी बात हुई और कई लोगों ने मुझे कहा कि ये बहुत ड्राई फिल्म है, इसमें आपको क्या पसंद आया? इसमें गाना नहीं है, इसमें ऋतिक रोशन का रोमांस नहीं है, ऋतिक रोशन इज नॉट लुकिंग लाइक ऋतिक रोशन ऑफ वॉर. तो ये एक अलग सोच होती है. Right. फॉर दैट मैटर जर्सी जब मुझे बहुत पसंद आई है, जो ओरिजिनल जर्सी थी, और वही डायरेक्टर था जिसने हिंदी वर्जन को भी डायरेक्ट किया था. Right. And it was a beautiful film. But it did not work because when I saw the Hindi version, I had loved the Telugu version. But when I saw the Hindi version, I told Shahid, this is not going to work. Because मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म में जो बात होनी चाहिए, जो पकड़ होनी चाहिए, जो grip होना चाहिए, was lacking. Right. I think that's what is very important, that you need to keep the audience glued. Why does RRR KGF score? Yeah. Because आप 2 घंटे बैठे हैं, पहले सीन से रामचरण के इंट्रोडक्शन से लेकर जूनियर एनटीआर के इंट्रोडक्शन से लेकर एंड तक जब वो लड़ाई करते हैं आपस में अंग्रेजों के साथ और उनका नाश करते हैं, इट होल्ड्स योर अटेंशन. वन थिंग हैपेंस आफ्टर अनदर एंड इतने फास्ट पेस में कि आपको पलक झपकाने का मौका नहीं मिलता. बट हियर इन दिस केस, if you start feeling restless, that means something is wrong with the film. Right. Avatar entertained for more than 3 hours. Yes. Yeah. और ऐसी बात नहीं है कि आज 3 घंटे फिल्में या लंबी फिल्में लोग देखना नहीं चाहते. आपने अवतार का बहुत अच्छा एग्जांपल कहा. I mean, you are looking on the screen and the screen and you say, wow, completely mesmerized, क्योंकि इस प्रकार की सोच भी हो सकती है. कोई ऐसा सोच सकता है कि हम ऐसी कहानी बताएंगे और ऐसे उसे विजुअल इफेक्ट्स के साथ पेश करेंगे. Is out of the world. Yeah. Well, same logic for Varun also, which is for Ranveer. He did Jug Jug Jua, which was okay at the box office, and then he did Bhediya, which didn't work. Same for him also as Ranveer. Not good choices, do you think? Well, I think I would not say good choices or bad choices. I would say Varun ने जो भेड़िया किया. See, when you have a track record like that of a director again, Stree किया उन्होंने, बाला किया है, and both were super hits. Yes. And then you do Bhediya, again out of the box. Right. Content. A good director, a fantastic production house backing it. A good co-star. Everything looking fine on paper. And it was a good film as well. But somehow there was this, उसकी 1 हफ्ते पहले एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था दृश्यम 2. जी. उसकी जो वेव आई थी, I sent a message to the producers of Bhediya.
हो सके तो इसे 1 हफ्ता और पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि जब एक वेव आती है ना तो उसके साथ में जितनी फिल्में आ जाती है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाती है। तो अगर आप देखेंगे तो सेकंड वीकेंड में भी दृश्यम 2 ने भेड़िया को कितनी भी अच्छी थी वो, जी या कितनी भी एवरेज थी, जो भी आपके ओपिनियन रहे हो, उसे टिकने नहीं दिया। सेम हाल हुआ था कश्मीर फाइल्स के साथ में, जी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पर जब एक वेव आती है तो उसके साथ में रिलीज हुई थी बच्चन पांडे, 1 हफ्ते बाद हुई थी राधे श्याम, सॉरी साथ में रिलीज हुई थी राधे श्याम, 1 हफ्ते बाद बच्चन पांडे, अक्षय कुमार की फिल्म। बट ये दोनों फिल्में नहीं टिकी, प्रभास भी नहीं, अक्षय कुमार भी नहीं। और जिस फिल्म से उम्मीदें नहीं थी, या शायद उतनी उम्मीदें नहीं थी कि वो उतना, या किसी ने सोचा नहीं था कि वो 250 करोड़ का बिजनेस करेगी, कश्मीर फाइल्स ने वो किया। तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट कि दर्शक क्या पसंद करेंगे और क्या नहीं पसंद करेंगे, वो आपको पहला शुक्रवार, द फर्स्ट फ्राइडे टेल्स यू दैट। अदरवाइज वी आर ऑल क्लूलेस। हम अंधेरे में तीर मार सकते हैं कि ये चलेगा और वो नहीं चलेगा। सेम केस विद भेड़िया। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, उसने तो बहुत मेहनत की, आई थिंक ही गिव इट हिज बेस्ट, बट जब फिल्म, एंड इट्स नॉट अ फ्लॉप ईदर, इट्स एवरेज, बट अगर फिल्म वो बिजनेस नहीं कर पाती जितना कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो समवेयर डाउन द लाइन आपको निराशा होती है। बट व्हेन यू लुक एट द अदर फिल्म्स का बिजनेस जो उसके बाद भी रिलीज हुई, देन यू फील कि ये तो बहुत अच्छा था। ओके राइट। लाइक व्हेन यू सी 83 का बिजनेस, इस फिल्म ने 800 करोड़ क्रॉस किया। ये बात और थी कि उसके इकोनॉमिक्स इतने गलत थे, उसमें जो इंटरेस्ट लगा था ड्यू टू द पैंडेमिक वो इतना हैवी था कि जो बर्डन था फिल्म की प्राइस का, वो 100 करोड़ में कवर नहीं होता था। Right, that's true. Before I come to 2023, last question is, has the South content become better and Bollywood content, Hindi film content has become worse, or is it a combination of these two things? South had never changed its tracks. It was always साउथ कभी बदले ही नहीं थे। उन्होंने हमेशा लार्जर देन लाइफ, अगर आप उनकी तेलुगु फिल्म देखेंगे, चिरंजीवी की लेकर, नागार्जुना की लेकर, नंदामुरी बालकृष्णा की लेकर से लेके अब तक अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू की, ये सारी फिल्में, उनमें उनका जो एसेंस है वो है एंटरटेनमेंट। उन्होंने लार्जर देन लाइफ एंटरटेनमेंट अपनी फिल्मों में दिया है और देते आए हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि हम वो रास्ता भूल गए जो 70s और 80s में हम बनाया करते थे। 1970s और 80s में हमारी लार्जर देन लाइफ मल्टी स्टारर एंटरटेनर्स बना करती थी। मानता हूँ काफी फिल्में नहीं चलती थी, पर इतनी भी नहीं कि पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज काइंड ऑफ फिल्म्स। बट आज की तारीख में अगर आप उन्हें स्टार्स तो ले लेते हैं, पर कंटेंट कुछ ऐसा बनाते हैं जो वो पसंद नहीं करते या देखना नहीं चाहते, तो उनका रिजेक्ट होना जायज है। ओटीटी ने लोगों को बचा दिया। कार्तिक आर्यन की फ्रेडी ओटीटी पे आई, तो क्या वो बॉक्स ऑफिस पे आती तो would have been a bad situation? I wouldn't say a bad situation. Initial तो लेती because of opening, लेती because of कार्तिक आर्यन popularity. Okay. But क्या होता है, कई फिल्में आप प्रोड्यूसर्स स्वयं रियलाइज कर लेते हैं, दे रियलाइज देमसेल्व्स दैट you need to put this on theaters or you have to sell it to the OTT platform. Okay. भूल भुलैया 2 was fantastic Right. in terms of numbers. Yes. 14 करोड़ की पहले दिन की ओपनिंग थी फॉर कार्तिक आर्यन, which is huge. और काफी समय तक वो नंबर 1 फिल्म रही in terms of opening day numbers. But Freddy was apt for the OTT platform. It's a very हटके subject. So that was a good decision. It was a very good decision. Okay. It was a very good decision. It was a very wise decision because क्योंकि आप जब OTT पे उसे देख लेंगे, या अक्षय कुमार की एक फिल्म रिसेंटली OTT पे रिलीज हुई थी, आई फील अगर वो फिल्म भी रिलीज होती थिएटर में, यू नो, तो वो रिजेक्ट हो जाती, एंड पीपल वुड हैव सेड कि देखिए एक और फ्लॉप आ गई। इट वाज बेस्ट दैट पीपल सॉ इट ऑन OTT। हाँ, वो उसे OTT पे देख लेते, और जो भी उनके ओपिनियन, इट वाज नॉट गुड ईदर, राइट, ऑन OTT उसे अप्रिशिएट भी नहीं किया गया, बट इट्स बेटर दैट कई फिल्में OTT का रूट ले ले। राइट। हाँ, आज की तारीख में OTT वाले भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, एंड दे फील दैट कि पहले आप थिएटर में लगाइए, उसके बाद हम OTT पे लगाएंगे। बट कुछ फिल्में जैसे अभी गोविंदा नाम मेरा, ये अगर थिएटर में लगती तो मे बी इट वुडंट हैव, मैं नहीं कहता हूँ ब्लॉकबस्टर होती, पर चल जाती, ठीक ठाक चल जाती। या इससे पहले ही धर्मा ने एक और फिल्म बनाई थी शेरशाह जी, अगर वो रिलीज होती OTT पे नहीं, उस वक्त खैर हालात ऐसे थे कि उन्होंने लॉकडाउन में उसे रिलीज कर दिया OTT पे, बट इनिशियली इट वाज प्लान्ड एज अ थिएट्रिकल रिलीज। बट अगर वो, इवन गोविंदा नाम मेरा वाज प्लान्ड एज अ थिएट्रिकल रिलीज, बट अगर शेरशाह भी अगर वो थिएटर में रिलीज होती तो इट वुड हैव वर्कड बिग टाइम। वाओ,
Yes. Right. 2022 you have analyzed and you've seen it and you've seen the big mistakes and the what has worked. 2023 looks good as where we are sitting today at the start first week. अच्छा लग रहा है कुछ कि risky लग रहा Fantastic. It's going to be a great year. है? Okay. देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है. Let's hope for the best. Let's be optimistic. Yeah. ये सोचिए कि हमारी फिल्में चलने वाली हैं. Starting with कुत्ते आ रही है. फिल्म कुत्ते. And then there is of course एक डब फिल्म आ रही है जो तेलुगु में ब्लॉकबस्टर थी और उसका नाम है अखंडा. 20 तारीख को आ रही है. बालाकृष्ण की. You never underestimate a South dub film nowadays. And उसके बाद of course पठान आ रही है. तो जनवरी का महीना जो है is chock a block with these three films. Interesting genres हैं. And then the year begins. Right. Right till December. It's going to be an interesting year. बहुत बड़े बड़े स्टार्स की फिल्म आ रही है. शाहरुख खान 3 फिल्मों में आ रहे हैं. सलमान खान आ रहे हैं 2 फिल्मों के साथ. किसी का भाई किसी की जान एंड ऑफ कोर्स टाइगर. रणबीर कपूर 2 फिल्मों में आ रहे हैं. लव रंजन की फिल्म एज वेल एज एनिमल. Yes. And I think Karan Johar's film with Ranveer Singh. Rocky or Rani. Yes. It's going to be a great year, I feel. Right. And I genuinely feel that a lot of correction has happened in 22. Right. When these films were shot, were planned, were penned, and now what you'll see on screen is going to be something very different. Because we've learned our lesson. अगर आपने अभी भी नहीं सीखा, तो क्या सीखा? क्या सीखा? हाँ. So I guess we need to change. We need to look at our content differently now. We need to control our economics and make tickets, cinema tickets more affordable. क्योंकि अगर आप affordable नहीं रखेंगे tickets को, अगर आप 400-500 रुपए की टिकट चार्ज करेंगे for a normal film, I can understand an event film. I can understand an Avatar or a KGF2 or an RRR. But आप एक normal film के लिए भी 200, 300, 400, 500 रुपए चार्ज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो ऑडियंस है वो छूटती जाएगी. आपको पठान से क्या एक्सपेक्टेशंस है? इज द एक्साइटमेंट शाहरुख इज कमिंग बैक? इज देयर, डू यू सी अ लॉट ऑफ गुड बज़ अराउंड इट? Absolutely. I mean, he's returning to the big screen after 5 years, almost 5 years. Yes. December 2018 में उनकी जीरो रिलीज हुई थी, फुल फ्लेजेड रोल. उसके बाद ऑफ कोर्स कई फिल्मों में नजर आए, छोटी छोटी रोल्स में, केमियोज में. बट ये उनकी फुल फ्लेजेड फिल्म है, पठान. आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक अ fantastic start at the ticket counters. Plus it's a great weekend क्योंकि 25 को रिलीज हो रही है, 26 जनवरी है, फिर then of course संडे है. बट शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, सलमान खान also in the film. I think अब फिल्म पर है to deliver the content. Absolutely. क्योंकि in terms of hype, in terms of craze, कोई भी रीज़न हो, आप उसके गाने को पसंद करे ना करे, आप उसके ट्रेलर को पसंद करे ना करे, उसके टीजर को पसंद करे ना करे, उसके पोस्टर को पसंद करे ना करे, बट देखने की उत्सुकता तो है. द एक्साइटमेंट इज देयर amongst the common man. When I meet a lot of people, non-film people, and they ask me Pathan के बारे में, that I feel that people are talking about it. They want to know. They want to know. And जैसे कल ही announcement आया है कि ट्रेलर लॉन्च होने वाला है 10 तारीख को. So you see the excitement. I guess it should translate into huge box office numbers. Right. There are some directors who have their own audience. Rohit Shetty is one. Karan Johar is one. He's coming with Rocky Aur Rani, which has Alia Bhatt, who had a great 2022 in a tough year. What are your expectations from Rocky Aur Rani? Tremendous. Again, Karan Johar returns to the director's chair after a gap, I guess. Yes. After Ae Dil Hai Mushkil. The thing with Karan Johar is that you expect larger than life movies. You expect great music. You expect great production values. And I guess and big stars. Right. So ये एक बहुत ही strong combination है. We are looking forward to this film because करण जौहर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहा एज अ डायरेक्टर, एंड वन होप्स दैट ही डिलीवर्स अगेन. Right. 2022 की ये भी एक learning है. Do you think because smaller actors and many other actors apart from the Khans gave hits, do you see the importance of Khans diminishing? You know, I read a lot of articles
और a section of the social media is writing कि खान्स का दौर ख़त्म हो गया, अक्षय कुमार का दौर ख़त्म हो गया, अजय देवगन का दौर ख़त्म हो गया, ऋतिक रोशन का दौर ख़त्म हो गया. I beg to differ. ये जो 90s के सुपरस्टार्स थे, इनका क्रेज़ हमेशा रहेगा. हम अक्सर कहते हैं कि हमारी फिल्मों में कंटेंट होना चाहिए या मसाला होना चाहिए या एंटरटेनमेंट होना चाहिए. मैं यहाँ पर दृश्यम 2 का एग्जांपल देना चाहूँगा. That ran solely because of drama and the performances. Ajay Devgan was top notch, Akshay Khanna was fantastic, Tabu was superb. ना उसमें गाने हैं, ना एक्शन है, ना रोमांस है. It is running on one track. But जो performances थे एक्टर्स के, अगर आप देखेंगे आने वाले समय में चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान इन अ राइट प्रोजेक्ट, अक्षय कुमार अगेन इन अ राइट प्रोजेक्ट, ऋतिक रोशन अगर वॉर की तरह आ जाएंगे एक और फिल्म में, आमिर खान, डोंट राइट देम ऑफ. हाँ, फ्लॉप, हिट और फ्लॉप किस एक्टर की फेज में नहीं आता, जिंदगी में नहीं आता. उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, आमिर खान हो. बट यू कैन नॉट राइट देम ऑफ. यू कैन नॉट से कि इनका करियर खत्म हो गया. एंड हम बहुत जल्दी ऑबिचुरीज लिख देते हैं कि इट्स ओवर, यू नो. बट देन सलमान की 8 फ्लॉप्स के बाद भी एक वांटेड आ जाती है, एंड देन ही इज बैक इन द रनिंग, एंड देन ही गिव्स, लाइन में एक हिट देते हैं वो, राइट, एक के बाद एक हिट देते हैं, और ऐसी फिल्में देते हैं जो 300 करोड़ टच करने लग जाती है, राइट. so never underestimate, right. That's why I think unka but yes, I genuinely feel that with the passage of time they need to switch over to strong characters. क्योंकि आप जब, और ऑडियंस जानती है आज की तारीख में कि you're 58 and you can't be playing a particular role. You can't be romancing a person or running around trees and singing songs. तो बदलते वक्त के साथ हमें बदलना जरूरी है. राइट. यू नो वन मोर थिंग, पहले फिल्म होती थी अगर नहीं अच्छी है तो नहीं चलेगी. नाउ देयर इज समथिंग, नाउ देयर इज एन एक्स्ट्रा समथिंग कॉल्ड ट्रोलिंग. डू यू थिंक ट्रोलिंग अफेक्ट्स बिजनेस? अगेन टू लुक एट इट फ्रॉम टू डिफरेंट साइड्स. सोशल मीडिया एक बोन भी है, बेन भी है. बिल्कुल. यू कैन सेंड अक्रॉस योर मैसेज एंड इट रीचेस फार एंड वाइड. एट द सेम टाइम सोशल मीडिया के कारण आपकी जो खबर है फिल्म की या आपकी जो रिपोर्ट्स है फिल्म की, वो आग से भी ज़्यादा तेज फैलती है. सो समवन सिटिंग हियर मस्ट बी राइटिंग अ रिव्यू और पुटिंग आउट हिज ओपिनियन. someone in Australia or America would be sitting there and reading in the next minute. और उनका एक जजमेंट उस वक्त पैदा हो जाता है कि हमें फिल्म देखनी है नहीं देखनी है. रहा सवाल ट्रोलिंग का, ये एक इविल है जो रहेगा, इससे आप इसको छुटकारा नहीं है, और खासकर ये एक्टर्स के लिए रहेगा. अधिकतम जो लोग हैं इनमें से मैं देखता हूँ कि जो बिना वजह ट्रोलिंग करते हैं, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर आप उससे अफेक्ट हो जाएंगे, इन बिटवीन कई बार ऐसा हुआ है, मैं किसी और का एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं अपना एग्जांपल दूंगा कि मैंने किसी फिल्म का बुरा लिखा हो, मैं नाम के साथ कहना चाहूंगा, मैंने जीरो का बुरा लिखा था, तो मेरी बहुत ट्रोलिंग हुई थी. बट दैट्स ओके. जब आप इस फील्ड में हैं तो इसके लिए तैयार रहिए. एंड दिस गोज फॉर एक्टर्स आल्सो एंड प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स आल्सो, जो बहुत ही सोचते हैं कि हमें ये हमारे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं. बट हर आदमी का, हर इंसान का एक ओपिनियन है. एवरीवन वोंट एग्री विद यू. या जरूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है या जो आपने लिखा है या जो इन्होंने लिखा है वो उन सब से सब सहमत हो. There must be a lot of times where you must be watching a film with your family, with your mother. आप अपने माताजी, पिताजी, बहन, वाइफ के साथ फिल्म देख रहे होंगे और वो आपको पसंद आ रही होगी पर उन्हें पसंद नहीं आ रही होगी. तो ओपिनियंस डिफर इन अ फैमिली आल्सो. राइट. तो ये तो बाहर के लोग हैं जो आपकी फिल्म को देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो उनके ओपिनियंस हो सकते हैं. वन शुड रिस्पेक्ट. राइट. हाँ, अगर आप बिलो द बेल्ट ट्रोलिंग करते हैं, दैट इज रॉन्ग. या right, never get personal. Right, you know, one question Taran we wanted to ask you is because you know you've done this for long, you're well respected. आजकल gossip और trade reviews कितने common हो गए हैं. I'm not like, you know, this is not about anyone in particular, but live tweet करना थिएटर से, बिना देखे रिव्यू डाल देना और ट्वीट कर देना, you know, just
as favors. Where is this taking all our business? Is it taking a credibility hit? Absolutely. And अगर आप देखेंगे तो मैं लाइव ट्वीटिंग के सख्त खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर आप पिक्चर देखते देखते ट्वीट करते जा रहे हैं तो आपका ध्यान नहीं है फिल्म में, आप उसे जज नहीं कर पाएंगे इन टोटालिटी। आप अपना ओपिनियन दीजिए, कोई रोक नहीं रहा। वैसे भी शुक्रवार को जब पहला शो खत्म होता है, हर आदमी क्रिटिक है, हर इंसान के पास एक ओपिनियन है और हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वो मुझसे सहमत नहीं है मेरे ओपिनियन से, या मैं उससे सहमत नहीं हूँ, बट येट यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट बिकॉज he has got all the right in this world to express his or her opinion. But the thing is कि आप लाइव ट्वीटिंग कर रहे हैं, वो गलत है। वो फिल्म के साथ नाइंसाफी है, उस एफर्ट के साथ नाइंसाफी है। A lot of journalists that I see, आपने कहा बिना देखे फिल्म का रिव्यू कर देते हैं, which is shocking. I think one should watch the film in totality, then form an opinion. Also, I feel that the journalism today is not as respected. कई बार ऐसा होता है जब और ये मैंने नोटिस किया है कि आप हर फिल्म की तारीफ कर रहे हैं, हर गाने की तारीफ कर रहे हैं, हर ट्रेलर की तारीफ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको उस एक्टर का इंटरव्यू लेना है। अगर आप तारीफ नहीं करेंगे, यस यू हैव टू प्लीज दैट पर्सन। अगर आप तारीफ नहीं करेंगे तो वो आपको इंटरव्यू नहीं देगा। अगर आप उसके गुड बुक्स में नहीं रहेंगे तो आपको वो कहेगा कि इग्नोर करेगा। तो कई बार ऐसा होता है। आई जेन्युइनली फील दैट अ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट टुडे आर डूइंग दैट बिकॉज उनको लगता है कि भाई हम हर गाने की तारीफ कर लेते हैं। अरे वो ट्रेलर हमने देखा, क्या कमाल का ट्रेलर था, हमने ये देखा, गाना देखा, वो कमाल का था, ये टीजर कमाल का है। एंड देन जो इंप्रेशन पड़ता है, जो दर्शक उसे देखते हैं, दे रीड इट, then they realize एक पॉइंट तक they are with you. After that अगर आप देखेंगे तो वो भी आपका साथ छोड़ने लगता है। The day they lose you is over. Yes. And इसका आज की तारीख में, पहले तो हम कहते थे कि हम इतनी I come from print media as you do, and हम कहते थे कि हमारी तो इतनी कॉपी छप जाती है हर हफ्ते। I am talking about my trade publication. But now on Twitter, on social media, आपको आपके व्यूज तक दिखाई देते हैं कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोगों ने आपके कमेंट्स पढ़े, रिव्यूज पढ़े हैं या न्यूज़ पढ़ा है, और कितने लोग उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं। इंस्टेंट लाइव रिएक्शन आता है कितने लोगों ने, और उसी से आपका मालूम पड़ता है कि आप पे लोगों का कितना फेथ है। कई बार ऐसा भी होता है कि हियर आई वुड ब्लेम द एक्टर्स आल्सो कि कहीं ना कहीं वो इतने ओवर एक्सपोज हो जाते हैं मीडिया के लिखने की वजह से भी, एंड एयरपोर्ट लुक्स की वजह से भी, और कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो न्यूज़ में रहने के किल्ले करते हैं कि एंड मीडिया उनका साथ देती है। जी बिल्कुल, फॉर वॉट एवर रीजंस, एंड आई थिंक दैट अफेक्ट्स देम। राइट। OTT का जो गैप है, डू यू सी दिस रिड्यूसिंग? बिकॉज दिस इज अ ट्रिकी सिचुएशन। आमिर अनाउंस की मेरी फिल्म बहुत टाइम तक OTT पे नहीं आएगी। ही वांटेड पीपल टू गो टू द थिएटर्स, बट पीपल डिसाइड एनीवे वेदर दे वांट टू वॉच और नॉट। बट व्हाट इज देयर अ सेफ पैसेज कि इतने? आई जेन्युइनली फील जब इन्होंने बीच में 4 वीक का गैप रखा था, दैट वाज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। लोग थिएटर में क्यों जाएंगे 4 वीक्स में? 4 वीक्स में, या बिकॉज आप सोच रहे हो कि एग्जैक्टली एक महीने बाद ये फिल्म थिएटर पे OTT पे आ जाएगी, किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी, मैं वहां देख लूंगा। राइट। यस, एन 8 वीक गैप इज इंपॉर्टेंट। 8 वीक से अगर आप ज्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कई बार हुआ है। मैं 2 फिल्मों का एग्जांपल देना चाहूंगा। वो OTT पे आ गई थी सफिशिएंट गैप के बाद, पर थिएटर्स में भी चल रही थी। पहली फिल्म पुष्पा, राइट, और दूसरी फिल्म हाल ही में रिलीज हुई कांतारा, अभी भी चल रही है, हालांकि OTT पे है और काफी गैप के बाद है। अगर जिसे देखना है तो देखेंगे, और अगर नहीं देखना, आपने लाल सिंह चड्ढा का जिक्र किया, वो तो पहले हफ्ते में ही आउट हो गई थी, पहले दिन ही आउट हो गई थी। उसका जो वर्डिक्ट था बहुत लाउड एंड क्लियर था कि फिल्म नहीं चलने वाली। आमिर खान हैज मिस्ड द बस दिस टाइम। एट द सेम टाइम लोगों ने ना फिल्म को भी रिजेक्ट किया, एट द सेम टाइम आमिर खान की परफॉर्मेंस को भी रिजेक्ट किया। They felt he was getting repetitive, right? And I think that's a problem. कि अगर आप फिर उसे OTT पे डाल देंगे तो I don't think वो 8 हफ्ते बाद भी अगर आएगी, या 3 महीने बाद भी आएगी, 4 महीने बाद भी आएगी, तो उतना कोई इम्प्रेशन होगा। Right. हाँ, बट आमिर खान की जो टॉकिंग अबाउट लाल सिंह चड्ढा, उनकी क्रेडिबिलिटी को हिट हुआ है, क्योंकि दिस इज द सेकंड मेजर फ्लॉप आफ्टर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। राइट।